So today we will discuss the next chapter. We will move on to the next chapter of the digital system, which is our gate level minimization. Here we will study different type of methods that we can use to minimize the number of gates that we want to use in our digital circuit, which will perform the same logical function that we want. Okay. So the minimization of gate level means we have to reduce the number of gates. That is the first thing. And second thing is we have also we also want to reduce the number of inputs in each of the gates. Okay, so this is equivalent to अगर हम algebraically बात करें, so this is equivalent to reducing the number of terms in the algebraic expression, Boolean expression of the logic function, as well as the number of literals in each term. ठीक है, जैसे a b c dash, so there are 3 literals. We want to reduce these number of literals in each term, and overall we also want to reduce the number of terms. The first method to do that is K-map, which stands for Karnaugh map. So today we will discuss in detail what do we mean by K-map and how do we reduce any expression using the K-map. So K-map is a diagram which is made up of squares, and each of those squares represent one min term of the function that we want to minimize. Each of the square box represents one min term, and if you will, by filling all the min terms in the K-map, you will get a visual of all the possible ways a function can be expressed in any standard form. ठीक है, किसी भी फंक्शन को आपने एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है. तो जितने भी पॉसिबल वेज आपको हो सकते हैं, वो सारे आपके उस विजुअल डायग्राम से पता चल जाएगा. ठीक है, we can also recognize the different patterns that will be formed on the K-map, and then we can derive alternative algebraic expressions for the same function. You will look at the K-map, you will do some recognize some patterns, you will analyze some methodology, and you will reach to a different algebraic expression. Okay, that will be a reduced form of the given Boolean function. और जितने भी आपको पॉसिबल दिखते हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा, जो सिंपलेस्ट होगा, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज द मिनिमाइज फॉर्म. So the simplified expressions are in two ways. Two forms में आप क्या सकते हैं. One is you are aware of SOPs, sum of product, and another is product of sum POS. दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम उसको निकाल सकते हैं. This I have already told you that the simplest algebraic expression, by that we mean that any algebraic expression with minimum number of terms with the smallest possible number of literals in each term. ठीक है, टर्म्स भी कम होने चाहिए और हर एक टर्म में लिटरल्स भी कम होने चाहिए. And this type of expression produces a circuit diagram with a minimum number of gates and the minimum number of inputs to the each of the. Now, if you try to solve any, try to reduce the algebraic expression of any Boolean function, then you can reach to different outcomes. Different results can be derived from that K-map. It doesn't mean one of them is wrong or one of them is right. There are more than one possible solutions to a given function, and both of them can be in the simplified form. We will see this later in the when we will solve the examples. So the very first we will discuss the two variable K-map. Okay, suppose that we have two variables. So out of those two variables, the number of combinations that we can have is 2 raised to the power 2, that is 4. So in total, there are 4 min terms if our number of inputs is 2. So that you can see here arranged in this K-map.
This is the 0th min term, first min term, second min term, third min term. M0, M1, M2, M3 arranged in a square. आप एक एक्सिस के ऊपर जो है वो x रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरे पे y रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे कि y की वैल्यू हम आपके यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम 1। सिमिलरली यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है 1। तो जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है वैल्यूज का, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी मीन टर्म है। अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0, तो दिस इज बेसिकली 0 0 ओ मीन टर्म m0। यहाँ पे बात करोगे आप तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू 1, दिस इज मीन टर्म 1। यहाँ पे 1 एंड 0, so this is m2, 1 and 1, this is m3। The intersection of the values will give you the value of that mean term। ठीक है, इसको अलजेब्रिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो मीन टर्म की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, x डैश y डैश, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं x डैश y, देन दिस इज x y डैश एंड लास्ट x y। ठीक है, तो ये तो है जितने भी पॉसिबल मीन टर्म्स बन सकते हैं टू वेरिएबल के मैप से, वो कैसे उसके अंदर अरेंज की जाएंगी। नाउ लेट्स से कि हमें कोई गिवन फंक्शन है, उसको हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो हमें दिया हुआ है दैट इज एक्स वाई। ठीक है, f इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एट द के मैप। तो आप क्या करोगे, जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स और वाई वैल्यूज का, जहां जहां पर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 1 है, वहां वहां पर आप 1 लिख दीजिए इन दी के मैप। इंटरसेक्शन का ध्यान रखना है, जहाँ पे एक्स भी 1 हो रहा हो, एक्स आपका 1 इस वाली रो में है और वाई आपका जो 1 है वो इस कॉलम में है। इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन है वो आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एक 1 लिख दिया। तो इस पूरे के मैप में सिर्फ एक ही मीन टर्म है, इसको हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स ऑफ सॉरी एक्स वाई। ठीक है, अब जैसे हमें अगर करना था एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई में हमारे पास बेसिकली टू टर्म्स हैं, दो मीन टर्म्स नहीं पता हमें कितनी है, बट दो उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स है, एक्स और वाई। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी मिन टर्म में 0 फिल करना है, कौन सी मिन टर्म में मुझे 1 फिल करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, एक एक टर्म को इंडिविजुअली रखिए। इसमें आपका एक्स गिवन है, एक वेरिएबल गिवन है, दूसरा वेरिएबल मिसिंग है, तो दूसरे वेरिएबल को आप कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल को देखोगे एक्स। और जहां जहां पर एक्स की वैल्यू 1 है पूरे के मैप में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, वहां वहां पर आप 1 इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू इस पूरे कॉलम में 1 है, मैंने क्या किया, पूरे कॉलम में 1 इंसर्ट कर दिया। तो दिस होल बंच ऑफ दिस पेयर ऑफ वंस, दिस रिप्रेजेंट्स x। अगर आप इसको एल्जेब्रिकली निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। आप देखिए पहली टर्म क्या बनी हुई है, m2। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या बनी हुई है, m3। तो मैंने x को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म्स का यूज किया है, m2 प्लस m3। अब m2 की वैल्यू एल्जेब्रिकली क्या लिख सकते हो, x is 1, y is 0, तो मैं उसको लिख सकता हूँ x is 1 that means x and y is 0 means y dash, प्लस m3 पे 1 है, m3 को कैसे लिख सकते हैं, x भी 1 है y भी 1 है, x y।
अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो दिस विल बिकम x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू x. So two min terms will be required to represent x in this particular K-map. Similarly for y, जहां जहां पर आपका y1 है पूरे के मैप में उस वहां पर आप 1 फिल कर दें. ठीक है, तो उसके लिए आपका ये दो वैल्यूज आएंगी. इस पूरे कॉलम में y1 है. अगर आप इसको भी रिड्यूस करके देखोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा. दिस इज बेसिकली m1 प्लस m3. तो m1 आपका क्या बन जाता है, दिस इज 0 1, so that means x dash y plus this is xy equal to y into x dash plus x, so equal to y. ठीक है, सो इफ अगर आपको गिवन फंक्शन जो दिया जाए, लेट्स से कि हमें ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3. रिड्यूस दिस यूजिंग दी के मैप. तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको जनरली अभी x प्लस वाई देखने की जरूरत नहीं है. अब आपको m1 प्लस m2 प्लस m3 है. ठीक है, तो जहां पर m1 है उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू पे आप 1 रख दीजिए. तो m1 यहाँ पे 1 था, हमने 1 रख दिया. m2 कहाँ पर था, वो यहाँ पे 1 रख दिया. m3 कहाँ पर था, यहाँ पर 1 रख दिया. अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें. अभी आप ये देखिए कि कैसे हमें के मैप के अंदर एंट्रीज को फिल करना होता है. अगर आपके 2 वेरिएबल के मैप है और आपके जो भी गिवन टर्म है उसमें भी दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी एक ही एंट्री आएगी कोरस्पोंडिंग टू दैट पर्टिकुलर मीन टर्म. अगर दो वेरिएबल में से एक मिसिंग है तो फिर आपको जो मिसिंग है उसको भूल जाइए, जो गिवन है उसकी वैल्यू देखिए. अगर यहाँ पे x की जगह पे x डैश होता तो फिर मैं वहां पर 1 फिल करता जहां पे x की वैल्यू 0 है, जहाँ पे x डैश एग्जिस्ट करता है. तो उसके लिए फिर मैं इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करता. इन दोनों जगह पे मैं 1 इंसर्ट कर देता, एक यहाँ पर और एक यहाँ. ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर जो है वो x डैश y होता तो उसके लिए एक ही एंट्री आती और वो वहां पे होती जहाँ पे x डैश एग्जिस्ट करता है और y एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए. तो दिस इज 0 इन दिस पर्टिकुलर रो एंड 1 इन दिस कॉलम. तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पर 1 फिल करता हूँ. तो दिस विल रिप्रेजेंट x डैश y. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी एंटर दी values in the K-map. Now let's move to 3 variable K-map. 2 variable K-map तो हमने सिंपल एंट्रीज कर दी, m0 m1 m2 m3 लिखा, 01 01 लिखे और हमने उसको एंट्री कर दी. 3 वेरिएबल K-map में हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो 3 वेरिएबल K-map में अगर 2 वेरिएबल के हिसाब से चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि m0 m1 m2 m3 लगातार आप फिल कर दो. नहीं, इसमें आप एंट्रीज इस तरीके से फिल करोगे कि आपका ग्रे कोड फॉलो हो रहा है. ग्रे कोड क्यों, ग्रे कोड अगर आपको ध्यान हो तो ग्रे कोड में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है that any two adjacent values have a difference of only 1 bit.
पूरे ग्रे कोड में कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज को आप रिप्रेजेंटेशन को लोगे तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा, बाकी का नहीं आएगा. दैट वी विल सी हियर कि हाउ दिस इज हेल्पफुल एंड हाउ वी आर यूजिंग ग्रे कोड हियर, व्हाई वी आर यूजिंग ग्रे कोड. तो फर्स्ट, हाउ टू एंटर दी वैल्यूज इन द की मैप, कि कौन सी मिन टर्म कहाँ पर होगी. तो उसके लिए आपका मेथड ये है 0 1 देन स्किप 2 3 4 5 स्किप वन वैल्यू 6 7. जीरोज और वंस की फॉर्म में बात करो तो इसको यहाँ पर हमने सपोज कीजिए एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स को, ठीक है, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है वाई और जेड को. इस तरफ इस एक्सिस पे आपका एक ही वैल्यू है, एक ही वेरिएबल है, तो आपको ग्रे कोड करने की कोई जरूरत नहीं है. पहला आपका 0 आ जाएगा, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. अब दो वैल्यूज हैं आपके इस वाले एक्सिस पे, इस साइड में. तो हम पहले तो स्टार्टिंग तो करेंगे 0 0 से ही, ठीक है. उसके बाद हम अगली वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज करके लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही बिट का डिफरेंस आना चाहिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर. तो यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 0 1. ठीक है. अब अगर हम नॉर्मल काउंटिंग की बात करें बुलियन उसके अंदर डेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम में, तो आपका आना चाहिए अब 1 0. लेकिन अगर यहाँ पे 1 0 लिखा तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर आपका 2 बिट्स का डिफरेंस हो गया. इनकी पहली बिट भी डिफर कर रही है, इनकी दूसरी बिट भी डिफर कर रही है, तो हम उसको के मैप में वो अलाउड नहीं है. तो फिर हम उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 1, क्योंकि दो बिट हैं, एक बिट को कांस्टेंट रखना है, दूसरी को चेंज करना है. अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हो और इसको चेंज करते हो तो इसको चेंज करके 0 लिख सकते हैं. दैट इज ऑलरेडी यूज्ड ऑन दिस साइड. तो अब हम इसको फिक्स रखेंगे 1 को और दूसरे को चेंज कर देंगे, तो वो बन जाएगा 1 1. तो हमने उसको यहाँ रख दिया. नाउ अगेन फ्रॉम देयर वी विल गो टू ग्रे कोड. अब आगे भी हमें चेंज करके लिखना है. तो अब अगर इसको फिक्स करके रखोगे तो ये वाले 0 करनी पड़ेगी, तो 1 0 वो आपका पहले एग्जिस्ट करता है. तो हम इस वाले 1 को फिक्स कर लेंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो दिस विल गिव अस 1. ठीक है. अब मार्किंग हो गई है 0 और 1 की. अब आप मिन टर्म्स लिख सकते हो कि कहां पर फोर्थ वैल्यू आएगी, कहां पर फिफ्थ वैल्यू आएगी. जस्ट गो टू एनी स्क्वायर. अगर हमें इस स्क्वायर की निकालनी है तो आप इसमें देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 0, जेड की वैल्यू क्या है 0. तो दिस रिप्रेजेंट्स m0. ठीक है. हम इस ब्लॉक में जाएंगे. इस ब्लॉक में देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 1, जेड की वैल्यू क्या है 0. तो 1 1 0, दिस रिप्रेजेंट्स m6. यहाँ पर आइए, एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई 1, जेड 1, 0 1 1. दिस विल रिप्रेजेंट सी m3. तो जब आप फिल करोगे तो आप भी आपको इसी तरीके से फिल करोगे. मार्क हियर 0 एंड 1, मार्क हियर 0 0 0 1 1 1 1 0. अगर हम एल्जेब्रिकली देखें एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको पहले ही पता है कि m0 को हम कैसे लिखते हैं, x डैश y डैश z डैश. m7 को लिखते हैं हम x y एंड z. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी मार्क दी एंट्रीज इन दी के मैप. अब गिवन फंक्शन में आपका m0 प्लस m2 प्लस m6 है, तो जहां पर भी m0 है वहां पर 1 लिख दो, जहां पर m2 है वहां पर 1 लिख दो, जहां पर m6 है वहां पर 1 लिख दो. यू हैव फिल्ड द के मैप. रिड्यूस करने के लिए हम आगे मेथड देखेंगे, पहले हमें फिल करना आना चाहिए. किसी को अब तक कोई भी डाउट हो 2 वेरिएबल के मैप और 3 वेरिएबल के मैप को फिल करने में? यस और नो बताओ. ओके. ठीक
ठीक है, तो लेट्स से कि हमें इस गिवन फंक्शन को मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। तो हियर इट इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड समेशन ऑफ 2 3 4 5। तो हमें मेन टर्म्स दी हुई है 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप जब फिल करोगे तो आप के मैप इस तरीके से बनाएंगे। 3 वेरिएबल है तो टोटल आपके 2 रेज़ टू द पावर 3 स्क्वायर्स होंगे, 8 स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, आपको एक ऑर्डर का और ध्यान रखना है। अगर आपका एक्स यहाँ पर है तो आपको एक्स इसी तरफ लेना है। आपका ऑर्डर जब आप इस तरीके से आप रीड करें तो वो वही आना चाहिए, एक्स वाई जेड, उसको चेंज नहीं करना है। तो ऑर्डर यहाँ पे गिवन है उसी ऑर्डर में हमने 8 स्क्वायर बॉक्स बनाए। एक तरफ एक्स लिखा, एक तरफ वाई जेड, इधर 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, और आसान बनाने के लिए आप अंदर यहाँ पे काउंटिंग भी लिख सकते हो, 0 1 keep 1 square 2 4 5 6 और 7। जहां जहां पर आपको गिवन फंक्शन में मिन टर्म्स दी हुई हैं वहां पर आप 1 लिख सकते हो। तो एक बार 2 पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, फिर 3 पे है तो यहाँ पे लिख दिया 4 एंड 5। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक ही काम किया है, वी हैव जस्ट फिल्ड द के मैप with the entries as given in the given boolean function। ठीक है, अब आपको हम इसका रिड्यूस करने का अगला स्टेप पे जाएंगे। रिड्यूस करने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली बनता क्या है। अगर हम इन दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज को कंबाइन करें तो वो रिड्यूस होके क्या बनता है, हम एक बार ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, m4 की वैल्यू लिखो और प्लस m5 की वैल्यू लिख दो। तो m4 आपका बेसिकली क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू m4 प्लस m5। m4 हमारा होता है 100, दैट इज x डैश y सॉरी x y डैश z डैश प्लस m5 होता है 101। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज 1 एंड दिस इज 01। ये हो जाएगा x y डैश z। अब इसको आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करो कि देखो क्या बनता है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x y डैश, अंदर क्या बचा z डैश प्लस z, z डैश प्लस z इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू x y डैश। तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म जो बनती है उसकी, उसमें दो वेरिएबल मिलते हैं, दो लिटरल्स मिलते हैं 3 की बजाय, एक लिटरल आपका कम हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी दो कंसेक्यूटिव आपके वंस हो। इसको कंबाइन करके देखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू m3 प्लस m2। m3 हमारा होता है 0 1 1, दैट मीन्स x डैश y z प्लस x डैश y z डैश। So this is equal to x dash y into z plus z dash. This is equal to x dash y। तो किसी भी दो को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा एक वेरिएबल जो है वो गायब हो जा रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन लिंक दिस विद द आइडिया ऑफ यूजिंग द ग्रे कोडिंग। कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारे ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमने ये काउंटिंग, ये जो नंबरिंग है ये इस तरीके से सेलेक्ट की कि दोनों के बीच में एक का ही डिफरेंस। तो यही उसका रीजन है कि आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज को अगर कंबाइन करोगे
तो उन दोनों में से एक आपका गायब हो जाएगा। और वो गायब कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे हमने ये दोनों वैल्यू जब ली, तो हमें ये दोनों में जहाँ पे पहली बार यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसको तो हम कॉमन ले लेंगे जब रिड्यूस करेंगे तो, और इसको अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वेरिएबल z, यहाँ पे बचेगा z बार। z प्लस z बार कंबाइन होके वैनिश हो जाता है, तो ओनली रिमेन्स वन वेरिएबल। ठीक है, जो x इक्वल टू 0 था वो कांस्टेंट रहता है दोनों में, y इक्वल टू 1 है वो भी कांस्टेंट रहता है, सिर्फ z को वैल्यू चेंज होती है तो वो वैनिश हो जाती है। तो इसीलिए हमने डेलिबरेटली इस तरीके से यहाँ पे फिलिंग की, इस तरीके से मार्किंग की जीरोस और वंस की, between any two consecutive squares, whether they are lying horizontally or whether they are lying vertically, the difference of the zeros and ones marking will be only in one bit. And when we combine any two consecutive ones, then one of the variable vanishes. उनमें से एक आपका गायब हो जाएगा, बाकी बच जाए। अभी हम 3 वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं, तो इसमें अगर इस तरीके से पेयर बना के रिड्यूस करेंगे तो 2 वेरिएबल की फॉर्म में आपकी एक्सप्रेशन आएगी। अगर आप 5 वेरिएबल को कंसीडर करोगे, उसमें कंबाइन करोगे तो 4 वेरिएबल बच जाएंगे, एक वेरिएबल कम हो जाएगा व्हेन वी कंबाइन 2 consecutive ones. Okay, so this is how it is reducing. बट वी हमें एल्जेब्रिकली इसको करना नहीं है, अब हमें स्टेप्स को ध्यान में रखना है। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे दो कंसेक्यूटिव वंस को कंबाइन करते हैं, तो जेड ही क्यों गायब हो रहा है यहाँ से, बाकी दोनों गायब क्यों नहीं हो रहे? तो उसका रीजन क्या है? जो भी आपने पेयरिंग की है, उस पेयर के अंदर आप मूव करो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में बना हो चाहे वर्टिकल में बना हो, और मूव करते टाइम जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए उसको हटा दो, और जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो उसको रख लो। अब मैं इस वेरिएबल में यहाँ से यहाँ गया, तो मुझे इतना पता है कि x की वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा x डैश। अब मैं दूसरे वेरिएबल पे जाऊंगा, इसके अंदर मूव कर रहा हूँ, तो आप वैल्यूज को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 है, इट्स नॉट चेंजिंग, तो इसको आप यहाँ पे लिखो y। थर्ड वन इज चेंजिंग, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 0 था, उसको मैं नहीं लिखूँ। so you will directly pair these consecutive ones, you will take an arrow out of this and you will write this. You don't need to go through all of this process. ठीक इसी तरीके से ये वाला ब्लॉक देखिए, आप पेयर देखिए, इसमें अब आप मूव करोगे तो यहाँ पे इस तरफ मूव करते हैं तो x की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, फिक्स है 1, तो x की वैल्यू की जगह यहाँ पे सिंपली x आ गया। अब इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो z की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 1, तो z को तो आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो y को रखना पड़ेगा। अब y रखना है कि y डैश रखना है, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू, 0 है कि 1 है। 0 है तो हम उसको लिख देंगे y डैश। इस तरीके से जितने भी पेयर आपके बन सकते हैं उतने पेयर आप बनाओ और फिर उनको रिड्यूस करके लिख दो, तो बेस फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन दोनों का सम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे दैट f इज इक्वल टू x डैश y प्लस x y डैश। दिस इज ए रिड्यूस्ड फॉर्म। अब फर्दर इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ में आया? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मतलब उन दोनों ब्लॉक की जगह पर हम एक ही टर्म लिखते हैं? दो की जगह पे? हेलो, एक ही टर्म लिख देंगे जैसे x डैश y। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही। अब बोलो दोबारा।
आप ये पूछ रहे हो कि दो वैल्यूज की जगह एक वैल्यू आ जाएगी? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपकी दो मीन टर्म्स थी। अगर आपको लिखना पड़ता है इसको सिंपल फॉर्म में, तो आपको लिखना पड़ता है एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश। दो टर्म्स यस। होती, वो दोनों टर्म्स में तीन तीन लिटरल्स होते। बट नाउ वी हैव रिड्यूस्ड टू ए फॉर्म जिसमें आपकी टर्म्स तो दो हैं, बट द नंबर ऑफ लिटरल्स इन ईच टर्म हैज बीन रिड्यूस्ड। तो गेट तो इसमें भी उतने ही लगेंगे, इसमें भी उतने ही लगेंगे, लेकिन इसमें एंड गेट की तीन इनपुट्स होंगी, इसमें एंड गेट की दो इनपुट्स होंगी। हमने उसको एक लेवल, कुछ लेवल पे उसका मिनिमाइजेशन कर दिया है। ओके। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं ओके ऐसे सर। ही। इस बार हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई जेड 3 4 6 7। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे समेशन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन बना हुआ है और अंदर आपको लिखा हुआ है 1 2, तो आपने क्या करना है, 1 और 2 पे 0 है, बाकी रिमेनिंग जगह पे 1 है, तो आप रिमेनिंग जगह पे 1 लिखिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास है 3 4 6 7। तो पहले आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए एक बार, तो आपको थोड़ा याद रहे। कई बार हम गलती से 1 से मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी वहीं। 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, तो इस 3 4 6 7, तो मैंने 3 पे एक क्लिक किया, 4 पर एक किया, 6 पर एक किया और 7 पर एक। ठीक है, अब हम पहले पेयर करेंगे। तो पेयरिंग करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि के मैप जो है वो आपका कंटिन्यूस एक के मैप है। कंटिन्यूस इन द सेंस कि आप एंड टू एंड भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। एंड टू एंड मींस आप इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के साथ भी क्लब कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए दोनों की वैल्यूज में एक ही बिट का डिफरेंस है। दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज 0 1 0। सिमिलरली अगर आपके वर्टिकल में भी और एक्स्ट्रा होते तो एंड टू एंड भी आप क्लब कर सकते हो। रैप अराउंड बोलते हैं इसको, कि आप रैपिंग भी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर हम क्या बना दें, हमने लेट्स से कि ये एक पेयर बना दिया। ठीक है, अब हम दूसरा पेयर क्या बना सकते हैं, दूसरा पेयर हम पहले ये वाला बनाते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे बीच में भी बन जाएगा। तो एक हमने बीच में भी बना देते हैं, दिस वन। ठीक है, तो देर आर बेसिकली 3 पेयर। अब इसमें आपको ये देखना है कि कोई भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दोनों जो वैल्यूज हैं वो किसी और पेयर में हो। जैसे अगर मैं इस ग्रीन वाले पेयर की बात करूं, तो इसमें जो ये वाला 1 है, दैट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पेयर, एंड दिस अनदर वन, दिस हैज बीन कवर्ड इन दिस पेयर। तो हम इसको बोल सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर पेयर इज रिडंडेंट। ये आपका रिडंडेंट पेयर बन जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हो, यू डोंट नीड दिस वन। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा पेयर बन रहा है जिसकी सारी वैल्यूज किसी और में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कंबाइंड हो चुकी हैं, तो आप उसको रिमूव कर देंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी को हम अब यूज करेंगे। तो अब आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए क्या आनी चाहिए रिड्यूस्ड फॉर्म।
YZ बताओ, plus XZ dash. YZ एंड XZ dash. हाँ, पहले सिर्फ इस वाले पेयर की बताओ, YZ. YZ। ठीक है, क्योंकि आप 3 वेरिएबल के मैप में आप ऐसे भी देख सकते हो, वर्टिकली मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ये दोनों वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो जो एक वैल्यू चेंज होगी वो स्किप हो जाएगी, तो दिस विल बी YZ। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल में देखिए, यहाँ इसमें क्या आएगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x की वैल्यू में तो चेंज नहीं होगा, दिस विल बी x। यहाँ पे YZ, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो Z is remaining constant with value 0, so we will write Z dash। So our answer will be f of x y z will be equal to x z dash plus yz। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हम एक बार रिडंडेंट पेयर को भी बना देते हैं, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाई दिस पेयर इज रिडंडेंट। तो एक बार हम रिडंडेंट पेयर का भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो क्या बनता है। तो रिडंडेंट पेयर की रिड्यूस फॉर्म बताइए क्या बनी। XY. x Y. Yes, y। XY. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि x और y में जो एक टर्म x है वो x z के साथ आई हुई है, और y जो है वो y, सॉरी, x z बार के साथ आई हुई है, और y जो है वो y z के साथ आई हुई है। अगर आप इसको लिखोगे तो बुलियन अलजेब्रा को यूज करके दोबारा से इसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। डिफरेंट लॉज को यूज करोगे तो एक बार ये जो वाली जो चीज है वो इसके साथ कंबाइन होके कुछ बन जाएगा, और एक बार इसके साथ कंबाइन होके, और लास्ट में दोबारा उसको रिड्यूस करके आप वेनिश कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी होम एक्सरसाइज है कि मैंने यहाँ पे प्लस एक्स वाई लिखा। अब इस प्लस एक्स वाई को अगर यहाँ पे लिखा गया है तो इसको एल्जेब्रिकली रिड्यूस कैसे करोगे, और ये कैसे वेनिश हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कंसिडर कर लोगे तो दूसरा पेयर वेनिश हो जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर आपने इस ग्रीन कलर को, ग्रीन वाले पेयर को कंसिडर किया और दूसरे रेड को रिमूव कर दिया, तो आपका एक वन जो है यहाँ पे वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, आपकी एक्सप्रेशन जो है वो गलत आएगी। तो यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, अब आप इसको फर्दर एलिजिबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो तो वो एक टर्म कैसे गायब हो। ठीक है, अब हम करते हैं वन मोर क्वेश्चन। 0 2 4 5 6। ठीक है, तो 0 2 4 5 6 पहले मार्किंग कर लीजिए। दिस इज 0 1 3 2 4 5 7 6। तो हमारा पहले है 0 पे है एक 1, तो दिस इज 0, देन 2 2 4 4 5 5 6।
ठीक है, अब देखिए हम कितने पेयर बना सकते हैं इसमें। हम ये वाला पेयर बना सकते हैं, हम ये वाला पेयर भाई बना सकते हैं, और एक हम ये वाला पेयर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम और क्या पेयर बना सकते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, हम इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है कि जितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो। अब ये है कि हमें कौन से उठाने हैं। तो अगर मैं ये 3 पेयर लूं तो उसमें सारे के सारे 1 कवर हो रहे हैं, कोई भी मुझे सर एक रिडंडेंट पेयर क्वाड्रेटिक भी नहीं तो लग ले रहा। सकते हैं। हाँ वो भी लेंगे हम, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ पेयर की बात करें तो ये पेयर हम ले सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी रिडंडेंट पेयर नहीं लगता। यहाँ पर आपका रैप अराउंड जो फीचर होता है के मैप का वो हम यूज करेंगे। तो जैसे एंड टू एंड एक 1 को दूसरे 1 से आप पेयर कर सकते हो, ऐसे ही एंड टू एंड एक पेयर को आप दूसरे पेयर के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। तो मैं इस पेयर को इस पेयर के साथ कंबाइन करके एक स्क्वाड बना सकता हूँ। इसको मैं बोलूंगा एक स्क्वाड। तो फिर मुझे पेयर को उस पेयर को हटाना पड़ेगा फिर अब। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेयर को हटा देते हैं, इसकी जगह हम एक स्क्वाड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पेयर की जो रिड्यूस फॉर्म है वो बताइए मुझे क्या बनेगी। एक्स वाई। एक्स एक्स वाई बार। हाँ एक्स वाई बार। एक्स वाई बार, करेक्ट। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्वाड का। तो उसका हम लेट से यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था, आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो भी आपने ग्रुप पेयर बनाया है उसमें मूव कीजिए। जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हटा दीजिए, जो नहीं चेंज हो रहा है उसको रख लीजिए। तो आप सोच के देखिए इस क्वाड की क्या बन सकती है रिड्यूस फॉर्म। जेड बार। जेड बार, और कोई बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या आएगा। जेड बार आएगा या एक्स बार आएगा, क्या आएगा। बताइए। इसमें तो एक जेड बार बार आप ही जेड बार ही आएगा ना, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया जेड बार। अभी आया कैसे, आप इसी पर्टिकुलर ब्लॉक में ही आप मूव कीजिए। पहले हॉरिजॉन्टल मूव कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे आप यहाँ से यहाँ, तो क्या चेंज हो रहा है, इस पूरे कॉलम में तो 0 0 है, इस पूरे कॉलम में 1 0 है। तो एक चीज यहाँ पे चेंज हो रही है जो कि वाई की है, जेड की चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया जेड बार। अब आप यहाँ पे मूव करो वर्टिकली, वर्टिकली जब मूव करेंगे तो यहाँ पे तो 0 0 है, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे 1 0 है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। एक्स यहाँ पे 0 से 1 चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 0 से 1 चेंज हो रहा है। एक्स को हम वेनिश कर दें। तो फॉर द वर्टिकल मूवमेंट एक्स वेनिशेस एंड while we move horizontally y vanish। तो एक ही चीज बचती है जेड बार।
So this reduced form is equal to z बार या फिर पहले एक्स वाई बार प्लस z बार, एक्स वाई डैश प्लस z dash. This is your reduced expression for this particular K-map, for this particular function f. तो अब हमने क्या देखा कि when we pair two consecutive squares, one variable vanishes. When we pair one quad, then two variable vanishes. क्योंकि obviously quad बना है तो वो 4 स्क्वायर से मिलके बना है. तो 4 स्क्वायर में मूवमेंट अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होगी ही होगी. तो 2 वेरिएबल आपके खत्म हो जाएंगे और एक बच जाएगा. वो डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू वहां पे 0 है कि यहाँ पे 1. इस z बार का मतलब ये है कि पूरे क्वाड में z की वैल्यू हमेशा 0 ही है. सर यस, सर नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है. ओके ओके. एक्सक्यूज मी सर, We एक will डाउट. continue from this on the next class. सर Yes. सर एमएसटी के सिलेबस के बारे में अगर कंफर्मेशन दे दो. MST का सिलेबस एक्चुअली में ना डिपेंड करेगा जो नए ग्रुप आए हैं बाद में उनका कहाँ तक कवर होता है. सर तो ये हमें कब पता चलेगा हम किस हिसाब से पढ़े हैं देखो इसे? बीजेटी और डिजिटल का कुछ पार्ट तो आएगा जाएगा, बीजेटी तक कंप्लीट, और डिजिटल का कुछ पार्ट तो आएगा. अब कितना आएगा वो अभी कह नहीं सकते. ओके सर. ठीक है.